اسرائیل کا لبنان پر دوسرا سائبر حملہ۔ لبنان میں پیجرز کے بعد وائرلیس ٹیلی کام آلات بھی دھماکوں سے پھٹ گئے۔ بیروت اور طائر سمیت مختلف علاقوں میں دھماکے ہوئے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی نے بیروت میں ہونے والے دھماکے سے متعلق اطلاعات کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ بیروت اور لبنان کے کئی علاقوں میں متعدد دیگر مواصلاتی آلات پھٹ گئے۔ حزب اللہ کے زیر استعمال واکی ٹاکی میں دھماکے ہوئے۔ گزشتہ روز کے سائبر حملے میں ایک ساتھ 3000 سے زائد پیجرز پھٹنے سے حزب اللہ ارکان سمیت 11 افراد شہید اور ایرانی سفیر مشتبہ امانی سمیت 3000 سے زائد زخمی۔ 200 کی حالت تشویشناک۔ شام میں بھی پیجرز پھٹنے سے 7 افراد شہید، درجنوں شہری زخمی۔ لبنان میں سائبر حملے کی منظوری اسرائیلی وزیر اعظم نے خصوصی اجلاس میں دی۔ مقصد دہشت گرد کارروائیاں نئے مرحلے میں داخل کرنا تھا۔ روسی میڈیا کا دعویٰ۔ نیو یارک ٹائمز نے رپورٹ دی ہے کہ تائیوان سے خریدے گئے پیجز کی کھیپ میں صہیونی فوج نے دھماکہ خیز مواد چھپایا تھا۔ عرب میڈیا کے مطابق پیجز میں انتہائی تباہ کن کیمیائی اور دھماکہ خیز مواد پیٹرن نصب کیا گیا۔ یہ مواد ٹینک چکن میزائل میں لگایا جاتا ہے۔ ایران کی لبنان میں پیجر دھماکوں کی مذمت۔ اسرائیلی دہشت گردی قرار وزیر خارجہ عباس عراقچی کا لبنانی ہم منصب کو فون۔ ایرانی سفیر کو فوری طبی امداد پر شکریہ ادا کیا۔ لبنانی حکومت نے کہا ہے کہ اسرائیلی دہشت گردی عالمی اصولوں کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ حماس کی بھی دھماکوں کی شدید مذمت۔ حزب اللہ کی غزہ میں فلسطینیوں کی حمایت کو سراہا۔ یمن حکومت نے کہا ہے کہ حزب اللہ کشیدگی کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ عراقی حزب اللہ کی لبنانی حزب اللہ کو ہتھیار اور جنگجو فراہم کرنے کی پیشکش۔ امریکہ لبنان دھماکوں میں ملوث نہیں، معلومات اکٹھی کر رہے ہیں۔ حملے کس نے کیے اس پر بھی ابھی رائے نہیں دے سکتے۔ ترجمان محکمہ خارجہ کی بریفنگ۔ اس وقت تو ہم نے ان کا مسودہ مکمل مسترد کر دیا ہے، بلکہ وہ تو اب یہ بھی کہنے کے لیے کہ ہمارا تو کوئی مسودہ ہے ہی نہیں، تو پھر جو پرووائڈ کیا گیا وہ کیا تھا؟ کسی کو پرووائڈ کیا گیا، کسی کو نہیں کیا گیا، یہ کیا کھیل تھا؟ کسی طریقے سے بھی، کسی لحاظ سے بھی وہ قابل قبول نہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا مولانا فضل الرحمان کے اعزاز میں ظہرانا بڑی بیٹھک لگی۔ مجوزہ آئینی ترمیم پر گفتگو۔ مولانا نے صاف صاف کہا حکومت کا مجوزہ مسترد یکسر مسترد کر دیا ہے۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمارا کوئی مسودہ نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے ظہرانے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ مسودہ کسی کو دیا گیا اور کسی کو نہیں دیا گیا۔ جو مسودہ مہیا کیا گیا وہ کیا تھا؟ جو کچھ بھی ہمارے حوالے کیا گیا ہم نے اس کا مطالعہ کیا۔ یہ مسودہ کسی صورت قابل قبول نہیں اور نہ ہی قابل عمل ہے۔ جایا تھا جو کہ جس طرح چھپایا جاتا تھا، یعنی آپ دیکھ لیں کہ کبھی اس طرح ہوا کہ کوئی قانون سازی ہو اور پھر اتنا بڑا ایک آئینی پیکج ہو جس کی 56 امینڈمنٹ تھی اور وہ عوام تو چھوڑے اپنے اور اپوزیشن بھی چھوڑے اپنے پارلیمنٹیرین سے بھی چھپائے رکھا۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ اتنا بڑا آئینی پیکج ہو اور اپوزیشن تو چھوڑے اپنے اراکین سے بھی چھپایا گیا ہو؟ حکومت نے آئینی ترمیم کو اپنے پارلیمنٹیرین سے بھی چھپایا۔ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر نے مولانا فضل الرحمان کے اعزاز میں اپنے رہائش گاہ پر دیے گئے ظہرانے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جے یو آئی اور پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں جو بھی کریں گے مل کر کریں گے۔ مولانا سے طے ہوا ہے کہ اپوزیشن مشاورت سے معاملات آگے بڑھائے گی۔ کچھ مطالبات پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس وقت پہ بھی چارٹر آف ڈیموکریسی کا جو انفنشڈ ایجنڈا تھا اس کے بارے میں کہا اور انہوں نے کہا کہ آپ اس پہ کام کریں۔ چارٹر آف ڈیموکریسی 2006 میں آیا، اس میں کہا گیا کہ دیگر بہت سارے ممالک کی طرح یہاں پہ بھی آئینی عدالت کا قیام ہو۔ آئینی عدالت کا مقصد آرٹیکل 184 کے تحت سموٹو اختیارات کا تعین کرنا ہے۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اسلام آباد میں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے میثاق جمہوریت پر دستخط ہوئے اور یہ طے پایا کہ انصاف کی فراہمی کے نظام کو آسان بنایا جائے۔ پیپلز پارٹی کا مطالبہ تھا عدالتی اصلاحات کی جائے، نون لیگ بھی چاہتی تھی عوام کو فوری انصاف ملے۔ وزیر اعظم نے عدالتی اصلاحات کے لیے کمیٹی بھی تشکیل دی۔ فوجداری اور ٹیکس اصلاحات شروع کر دی گئیں۔ کہا گیا کہ فوجی عدالتوں کا قیام بھی ہونے جا رہا ہے۔ شروع میں بالکل یہ بات تھی۔
आईनी अदालत पर बहुत तनकीद हुई। क्या किसी ने देखा कि जजेस की तैनाती के तरीक़ेकार में कोई तब्दीली आई? जो आईनी पैकेज आ रहा है हम सब बैठे हैं मगर हमें पता नहीं इसमें लिखा क्या है। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इजलास से खिताब करते हुए पीपल्स पार्टी रहनुमा फारूक एच नाइक ने कहा कि मेरी वज़ीर कानून से गुजारिश है ड्राफ्ट तैयार करके स्टेक होल्डर्स से शेयर करें। स्टेक होल्डर्स की ख्वाहिशात के मुताबिक आईनी अदालत बननी चाहिए। काबीना की मंजूरी के बगैर बिल पार्लियामान के पास नहीं आ सकता। पीपल्स पार्टी फौजी अदालतों की हिमायत नहीं करती। पीपल्स पार्टी फौजी अदालतों के हवाले से उसूली मौक़िफ़ रखती है। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स लॉयर्स फोरम के सूबाई सदूर के इजलास की सदारत करते हुए कहा कि आईनी तरमीम का ज़ेर गर्दिश मुबैना मुसव्वदा असल नहीं। पीपल्स पार्टी मीसाक के जमहूरियत और अपनी मंशूर के तहत आईनी अदालतों के क़याम के हक़ में है। बिलावल ने इजलास को मुजव्वज़ा आईनी तरमीम पर अब तक होने वाली पेशरफ्त से आगाह किया। दुनिया के ममालिक के अंदर सुप्रीम कोर्ट अलग होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अलग होती हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के अंदर ही आईनी मामलात जो हैं वो जाते हैं ताकि जो आम शहरी हैं उनके मामलात में जो है वो उनको इंसाफ भी मिल सके। ये वाहिद मुल्क है जहाँ पे 9 मई जैसे केसेस का भी आज तक फैसला नहीं हो सका। केस लोड इतना है कि हज़ारों केसेस जो हैं वो पेंडिंग होते हैं। आईनी तरमीम के सिलसिले को आगे बढ़ाया जाएगा। वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता तारड़ का कहना है कि पार्लियामेंट में तमाम जमातों ने सैर हासिल गुफ्तगू की। आईनी तरमीम का मुसव्वदा तमाम सियासी जमातों के पास मौजूद था। दुनिया भर में सुप्रीम कोर्ट अलग होती है और आईनी अदालत अलग होती है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ 9 मई जैसे मुकदमात का फैसला भी न हो सका। पाकिस्तान रूस बैनुल-वज़ारती कमीशन के आइंदा इजलास के लिए तैयारियां जारी। बाहमी एहतराम और मफाद पर मबनी अप्रोच से दो तरफा ताल्लुकात मज़बूत राह पर गामज़न हुए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने रूसी नायब वज़ीर आज़म के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा कि दोनों ममालिक के तजारती और माशी ताल्लुकात में इजाफ़ा खुश आइंद है। SCO सरबराह इजलास में रूसी वज़ीर आज़म की शिरकत के मुंतज़िर हैं। अमरीका की एक बार फिर पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के खिलाफ हर्जा सराई। अमरीकी तर्जुमा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि पाकिस्तान से तवील शराकत दारी है लेकिन उसके बैलिस्टिक प्रोग्राम पर खदशात बरकरार हैं और उसकी हिमायत नहीं करते। पाबंदियां और दीगर इक़दाम बरकरार रखेंगे। चीनी रिसर्च सेंटर्स की पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में मुआवनत और रूसी नायब वज़ीर आज़म के दौरे पाकिस्तान का बागौर जायजा ले रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बरतानिया के बादशाह शाह चार्ल्स सोम से टेलीफोनिक राबता। शाह चार्ल्स की शहबाज शरीफ को दौलत मुश्तरका के हुकूमती सरबराहान के इजलास में शिरकत की बाकायदा दावत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने दौलत मुश्तरका और इसके चार्टर पर अमल दरामद के अज़्म का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि समूआ में कॉन्फ्रेंस दौलत मुश्तरका की तारीख का अहम इजलास होगा। इस केस में आज 2 अक्टूबर की डेट हुई है क्योंकि इस इलेक्शन के कागजात जो हमने इलेक्शन कमीशन में फ़ाइल किए थे वो अभी तक बदस्तूर FIA के पास है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये मैटर इस मरतबा सेटल हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस मसले को हल कर चुकी है। हमें उम्मीद है इंशाअल्लाह इलेक्शन कमीशन इस मरतबा मज़ीद रोड़े नहीं अटकाएगा और इंशाअल्लाह हमारे इलेक्शन को एक्सेप्ट करेगा। तहरीक इंसाफ इंटर पार्टी इलेक्शन केस की समाअत। बैरिस्टर गौहर ने दस्तावेजात जमा कराने के लिए 10 दिन की मोहलत मांग ली। समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं PTI 175 सियासी जमातों में वाहिद जमात है जिसने शफाफ तरीन इंतखाबात करवाए। हमने दरख्वास्त की थी कि FIA से तमाम दस्तावेजात तलब की जाएं। असल में गवर्नर जो है ये चाहता है इम्पोर्टेंस। वो कहते हैं ना वेला, वो मेरे ख्याल में एक वो लड़का है वेला मुंडा, वो टिकटॉक पे वो वेले मुंडे वाली ID इसको देते हैं। पर्ची पे आया हुआ बंदा है, पर्ची पे तुम्हारा ऑर्डर हुआ है, इस सूबे में तुम्हारा मैंडेट है नहीं। बंदर बांट मैंडेट चोरों के साथ मिलकर इस मुल्क पे डाका डाला गया है, इस मुल्क की जमहूरियत पे। फैसल करीम कुंडी पर्ची पर आया बंदा करार। वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि गवर्नर अहमियत चाहता है, वो आईनी तौर पर कुछ नहीं कर सकता। एक टिकटॉकर पंजाब में बैठी है, दूसरा गवर्नर हाउस KPK में बैठा है। आराम से बैठकर टिकटॉक बनाते रहो वरना किसी एनेक्सी में भेज दूंगा। वज़ीर दिफा ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को उनका 8 सितंबर का खिताब याद दिला दिया। कहा कि मोहतरम वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गंडापुर साहब, आज आपकी पंजाब पे लश्कर कुशी और हमले की धमकी को 10 रोज गुजर गए, 5 रोज रह गए हैं।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। ट्रायल कोर्ट ट्रायल मुकम्मल कर ले लेकिन हतमी फैसला ना दे। एहतसाब अदालत में रेफरेंस के तफ्तीशी अफसर मियां उमर नदीम पर जुरा मुकम्मल न हो सकी। वकला सफाई की समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त बैरिस्टर सलमान सफदर और जहीर अब्बास चौधरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मसरूफ हैं। समाअत मुलतवी की जाए। अदालत ने केस की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। GTV की खबर पर एक्शन। तमाम बड़े शहरों में पासपोर्ट बैकलॉग खत्म। फॉरेन मिशंस, ऑनलाइन और होम डिलीवरी के तमाम केसेस भी निपटा दिए गए। GTV ने पासपोर्ट बैकलॉग की वजह से लोगों को होने वाली शदीद मुश्किलात की खबर दी थी। DG पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन मुस्तफ़ा जमाल के मुताबिक तमाम बड़े शहरों में पासपोर्ट का बैकलॉग सिफर कर दिया गया है। मुल्क भर में पासपोर्ट इजरा के हवाले से बैकलॉग भी जल्द खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। अक़वाम मुत्तहिदा ने ई गवर्नमेंट में पाकिस्तान को पहली मरतबा आला कैटेगरी में शामिल कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स ने रिपोर्ट जारी कर दी। 2022 के मुकाबले में पाकिस्तान 14 दर्जे तरक्की के बाद 136वें नंबर पर आ गया। ई पार्टिसिपेशन कैटेगरी में भी पाकिस्तान 106 से 88वें नंबर पर आ गया। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड पर ब्रीफिंग ली तो सुनकर औसान खता हो गए। 5 साल में करप्शन के सिवा कुछ नहीं हुआ। PTI के एजुकेशन मिनिस्टर ने पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में 1 अरब की करप्शन की। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, हमारी कोशिश है लोगों को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ दे सकें। एजुकेशन के मयार को बेहतर करने में कामयाब होंगे। पहले मरहले में 5800 स्कूलों को आउटसोर्स कर रहे हैं। फेज 1 में आउटसोर्स होने वाले पंजाब के सरकारी स्कूलों के लिए बुरी खबर। आउटसोर्स होने वाले स्कूल्स को नॉन सैलरी बजट इस्तेमाल करने से रोक दिया गया। थर्ड पार्टी वैलिडेशन के बाद फैसला किया जाएगा कि नॉन सैलरी बजट कहां इस्तेमाल होगा। फेज 1 में 5863 सरकारी स्कूलों को प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के तहत चलाया जाएगा। इलेक्ट्रिक सार्फिन को मुसलसल माहाना और सहमाही एडजस्टमेंट का सामना। रवा माह सार्फिन ₹2.74 फी यूनिट अदा करेंगे। अक्टूबर में माहाना और सहमाही एडजस्टमेंट में फी यूनिट ₹4.33 अदा करेंगे। कि इलेक्ट्रिक सार्फिन सहमाही एडजस्टमेंट में सितंबर से नवंबर 2024 में ₹1.74 अदा करेंगे। अफगान ओहदेदारों की सिफारती बेअदबी पर पाकिस्तान का एहतजाज। अफगान कौंसल खाना पेशावर का वजाहती बयान जारी। कौमी तराने के एहतराम में खड़े न होने का मकसद बेहुरमती और बेतौकीरी नहीं था। म्यूज़िक की वजह से कौंसल जनरल खड़े न हुए। तराना म्यूज़िक के बगैर होता तो कौंसल जनरल लाजमी खड़े होते और सीने पर हाथ भी रखते। जालसाजी पर मबनी ईमेल हमलों के जरिए सरकारी इदारों और वजारतों को निशाना बनाने का इंकशाफ। फिशिंग ईमेल्स के जरिए धोखाधड़ी पर मबनी लिंक्स पर क्लिक करने से सरकारी दस्तावेज कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं। नेशनल कंप्यूटराइज्ड इमरजेंसी रिस्पांस टीम की सरकारी इदारों को मोहतात रहने के लिए एडवाइजरी जारी। गजा के इलाके रफा में मज़ाहिमतकारों ने सहूनी फौज की गाड़ी बारूदी सुरंग से उड़ा दी। 4 सहूनी फौजी हलाक और कई जख्मी। सहूनी फौज फलस्तीन की दुश्मन। गजा सिटी दीर अरबरा और नसीरात कैंप पर शदीद बमबारी। मजीद 35 फलस्तीनी शहीद, 15 जख्मी। बच्चे और खवातीन भी निशाना बने। मकबूजा जम्मू और कश्मीर में रियासती इंतखाबात के पहले मरहले की दौड़। 90 हलकों में से 24 में वोटिंग मुकम्मल। वोटों की गिनती जारी। पोलिंग स्टेशंस पर सुबह से ही वोटर्स की कतारें लगी रहीं। हजारों भारतीय फोर्सेस के एहलकार तैनात। वादी को छावनी में तब्दील कर दिया। ICC के वफ्द का कराची के नेशनल स्टेडियम का दौरा। चैंपियंस ट्रॉफी से मुतालिक सहूलियात और तामीराती कामों का जायजा। वफ्द को नेशनल स्टेडियम और होटल में फराहम करदा सिक्योरिटी पर ब्रीफिंग। ICC वफ्द कराची के बाद इस्लामाबाद और लाहौर का भी दौरा करेगा। और नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई की तैयार करदा दस्तावेजी फिल्म ने टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेहतरीन एशियन फिल्म का नेट पाक अवार्ड जीत लिया।